جھنگ کے مقام پر دریا چناب میں طغیانی دریا کنارے پانی کی سطح مزید بلند ہونے لگی۔ چک کچا اور گرد و نواح سے مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ کے مقام پر دریا چناب میں دریا کنارے پانی کی سطح مزید بلند ہونے لگی۔ چک کچا اور گرد و نواح سے مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی رمضان بتائیے۔ جی بالکل، حفاظتی بند کے اندر موجود علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے۔ ابھی بھی ترمو براج کے اوپر 1 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا جو ہے وہ موجود ہے، جس کے باعث جو علاقے ہیں وہ زیر آب ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ شہریوں کی یہاں سے علاقہ مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ارباب آپ کو اس وقت دکھا بھی سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کس علاقے سے آپ آئے ہیں؟ موضوع میں گانا چک کچا جی، دریا والی مان جی، وہاں پہ یہ دریا کا بالکل کنارہ ہے؟ بالکل کنارہ جی، بالکل کنارے تے بیٹھا جی۔ اور کیا صورتحال ہے؟ پانی کس قدر زیادہ ہے؟ یہ تقریباً 4 سے 4.5 فٹ پانی جی رقبے دے۔ تو ابھی ڈر آ رہا تھا کہ مزید نہ پانی بڑھ جائے تو نکلنا مشکل ہو جائے؟ ہاں تھلے سے برابر یہ کوئی پانی کو ڈر تو نکلے جی باہر۔ تو آپ نے وہاں سے جانور بھی نکال لیے ہیں؟ 20 کی جانور لے کے سامنے توڑے آ کے جی۔ بالکل بیٹا، پانی کتنا زیادہ ہے وہاں پہ؟ تھلے سے برابر ہے، لے لیں برابر۔ تو آپ یہ اپنا جانور بھی لے آئے؟ یہ پڑا تھا جی بالکل۔ ارباب دکھائیے گا، یہ سارا سامان ہے، خواتین موجود ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ پریشان جو ہیں وہ خاصے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ دریا کے کنارے سے لوگ جو ہیں وہ شہر کی طرف جو ہے وہ اب آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے رمضان مرزا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں بھوانہ کے علاقے موزہ ساحل میں سیلاب اور زمینی کٹاؤ سے تباہ کاریاں جاری۔ زمین تیزی سے دریا بدھ ہونے لگی جبکہ علاقہ مکین نقل مکانی کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں بھوانہ کے علاقے موزہ ساحل میں سیلاب اور زمینی کٹاؤ سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے فخر دیوان بھٹا سے۔ جی فخر بتائیے۔ موزہ ساحل کے قریب سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ زمینی کٹاؤ کی وجہ سے زمین تیزی کے ساتھ دریا برد ہونے لگی ہے۔ موزہ ساحل کھنڈر میں تبدیل ہونے لگا ہے۔ علاقے کے لوگ اپنی مدد کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر حکایت تمیز مناظر بھی ہیں، بہت پریشان حال دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا، آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا آباد و اجداد انہوں نے یہ جمع پونجی رکھی اور گھر بنایا۔ اب جب ہم گھر میں بیٹھنے کے قابل ہوئے ہیں تو دریا نے یہ ہماری زمین گرا دی ہے، تو ہمارے مکان بھی گر گئے ہیں۔ اب تو ہم بالکل ہینڈ اینڈ موت ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اپنے گھر تعمیر کر سکیں۔ جس طرح ایک پرندے کو گھونسلہ چھوڑنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، ہمیں بھی اصل میں تو دل ہمارا خون کے آنسر ہوتا ہے جب ہم گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن پھر یہ اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے۔ لیکن گورنمنٹ سے اپیل ہے انتہائی زیادہ، پہلے بھی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے متبادل آپ کو زمین دے گئے، لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ تو آج جو ہے نا پھر ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے متبادل زمین دی جائے تاکہ ہم اپنی جھونپڑی تعمیر کر سکیں۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی، اور بھی لوگ موجود ہیں، آپ بتائیے گا، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ اسی طرح جیسے بھائی نے کہا ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ گر چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گھر ہیں، دیکھ لیں۔ اب ہمارے لیے جو اینٹیں بڑی مشکل سے گھر بنایا تھا، اب ہمارے جو دادا لوگ ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کے بڑی مشکل سے یہ زمین بنائی۔ جب یہ زمین بنائے پھر گھر بنائے، گھر بنانے کے بعد پھر دریا کٹاؤ جو ہے اس نے ہمارے گھروں کو گھیر لیا۔ اب ہمارے جو گھر ہیں وہ سارے گر چکے ہیں، بالکل گر چکے ہیں۔ یہ کچھ حصہ باقی بچا ہے، جو اینٹیں ہم نکال رہے ہیں زمین سے وہ بھی بڑی مشکل سے نکال رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، ہم بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ہمارا کوئی ابھی تک ساتھ نہیں دے رہی۔ انہوں نے ہم سے بہت زیادہ وعدے کیے ہیں، ادھر آتے ہیں تصویریں بنائی چلے گئے۔ اور جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کے پرندے کو اپنے گھونسلہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہمارا گھر جو ہے وہ چھوڑنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ دیکھ کر ان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہو رہا ہے، لہٰذا وہ حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو گھر بنانے کے لیے مالی امداد دی جائے اور متبادل زمین فراہم کی جائے۔ چنی اور کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح میں کمی۔ دریائے چناب 87,000 کیوسک کا آبی ریلا گزر رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار بتائیے۔
जी चिन्योट में दरियाए चनाब में इस वक्त अगर सैलाबी रेले की बात करें तो 87,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त दरियाए चनाब चिन्योट के मुकाम से गुजर रहा है, जो कि यहाँ से होता हुआ हेड त्रिमू में जा गिरेगा। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि दरियाए चनाब में गुज़श्ता रोज़ जो सैलाबी रेला गुजरा था उससे जो फसलें काफ़ी चिन्योट में ज़ेर आब आई थी। इस वक्त कैमरामैन आपको दिखा रहा है कोट अमीर शाह का जो इलाका है, ये सारा इस वक्त जो फसलें हैं वो ज़ेर आब हैं, लेकिन पानी की सतह में कमी वाक़या हो रही है। हेड कादराबाद से इस वक्त 77,000 क्यूसिक का रेला चिन्योट की जानिब रवां दवा है, जबकि चिन्योट से इस वक्त 87,000 क्यूसिक का रेला हेड त्रिमू की जानिब बवाना लालियां से गुजरता हुआ हेड त्रिमू में जाके गिरेगा। कल ये इस ब्रिज के जो पिलर्स हैं तकरीबन आधे पानी में डूबे हुए थे, लेकिन पानी की सतह कम होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि पिलर्स का काफ़ी हिस्सा नज़र आ रहा है। चिन्योट में अगर हम तहसील चिन्योट में नुकसानात की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ फसलें हैं जो दरियाई पट्टी के ऊपर वाक़ हैं, सिर्फ वो ज़ेर आब आई हैं और वहाँ से भी पानी निकलना शुरू हो चुका है। जो आबादियाँ थी उनका इन्हला मुकम्मल करवाया गया था। ताहम तहसील बवाना में सामल के मुकाम पर कटाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने में नज़र आ रहा है। ज़िलाई इंतज़ामिया का ये कहना है कि वहाँ पे भी कैंप्स लगाए गए हैं, मशीनरी मौजूद है और लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। अगले चंद घंटों में पानी की सतह में मज़ीद कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी टोबा टैक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का बिजली कीमतों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। वकला ने मुकम्मल हड़ताल की। मुकदमात की पैरवी के लिए अदालतों में पेश नहीं हुए। बात करने के लिए मौजूद है अहमद नदीम। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से बिजली के बिलों में ज़ायद इजाफे और बिजली की कीमतों में इजाफे पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक्सिंग के वकला सरापा एहतजाज हैं। वकला की जानब से जो है वो आज स्ट्राइक की गई है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान जो हैं वो एहतजाजी तौर पर आज अदालती मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में जो है अपने मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में अदालतों में पेश नहीं होंगे। इस हवाले से जो है वकला मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। ये हुकूमत जब आई थी तो इसका एक क्राइटेरिया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। जब से ये हुकूमत आई है महंगाई को कम तो करना दरकिनार महंगाई को डबल से ट्रिपल में लेके जा चुके हैं। ये जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनके नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, लेकिन अवाम के लिए इनके पास कोई फंड नहीं है। अवाम मरती है मरे, इनको अवाम की परवाह ही नहीं है। इनको सिर्फ अपने लल्लो तल्लों पे पैसे उजाड़ने की पड़ी हुई है। प्रोटोकॉल इनको पूरा चाहिए। अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं है, अवाम के लिए रिलीफ नहीं दे सकते, तो अपना प्रोटोकॉल कम कर लें। मैं इनसे सख्ती से यह मुतालबा करता हूँ कि ये अपने जो इन्होंने अखराजात ज़्यादा किए हुए हैं उनको कंट्रोल करें। गरीब तो अपने इलाज के लिए तरस रहा है, वो खाएगा कहाँ से, वो कहाँ से आटा लेगा। ये तो उस वक्त कह रहे आटा है, चीनी है, अब इनको नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं सख्ती से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जल्द अज जल्द महंगाई को कम करें, वरना हम अभी तो सिर्फ हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं, इसके बाद हम सिविल नाफरमानी की भी तरफ चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वकला की जानब से जो है वह एहतजाज का दायरा कार वसी करने की जो है वो इंदिया दे दिया गया है। ताम उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि बिजली के बिलों में जो है वो ज़ायद वसूली जो है ज़ायद टैक्स और बिजली की कीमतों को जो फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि महंगाई के मुश्किल दौर में जो है वो गरीब को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद नदीम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हुकूमत की जानिब से बिजली कीमतों में इजाफे की खिलाफ शोर कोर्ट के वकला सरापा एहतजाज। बार एसोसिएशन शोर कोर्ट ने हड़ताल कर दी। मजीद जान लेते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइए। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जहाँ शहरी सरापा एहतजाज हैं, वहीं पे वकला की जानिब से भी शदीद गम गुस्सा का इजहार किया जा रहा है। आज बार एसोसिएशन शोरकोट की जानिब से भी हड़ताल का ऐलान किया गया है, अदालतों का बाईकाट भी किया गया है। तो मेरे साथ बार एसोसिएशन के फनान सेक्रेटरी जो है मोहम्मद वकास काठिया एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा, आपकी जानिब से आज हड़ताल का ऐलान किया गया है, हुकूमत से क्या अपील करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब शहजाद साहब, शुक्रिया। इस तरह है कि जो अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों में इजाफा किया है, इसे फिलफौर वापस लेना चाहिए। इसलिए हमने आज अपने बार की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया है। और पहले 2 टाइम की रोटी खाना गरीब आवाम के लिए महाल हुआ है। तो जो ये अपने वज़रा को और ब्यूरोक्रेसी को जो गाड़ियाँ दी जा रही हैं, उनको नवाजा जा रहा है, उसको फिलफौर वापस लेना चाहिए और मैक्सिमम आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को नवाजा जा रहा है तो हुकूमत को चाहिए कि वही रिलीफ जो है वो आम आवाम को दिया जाए। अगर बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया उसे वापस ना लिया गया है तो वकला की जानिब जो हड़ताल का दायरे कार है उसे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शहजाद अली अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, सस्ती अशिया का हुसूल इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की कतार लग गई।
صبح سے کتاروں میں لگنے والے اب بھی انتظار میں، چینی دستیاب نہیں، آٹے کے لیے بھی خوار ہو رہے ہیں۔ سستی اشیاء کا حصول امتحان بن گیا، فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر شہریوں کی قطاریں لگ گئیں۔ صبح سے قطاروں میں لگنے والے اب بھی قطار میں انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ نمائندہ سٹی 41 احمد سعد۔ جی احمد، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر شہریوں کی جو ہیں وہ لمبی قطاریں لگ گئی۔ شہری جو ہیں وہ سستی اشیاء کے حصول کے لیے جو ہیں وہ خوار ہونے لگے۔ شدید اس ٹائم بات کی جائے موسم کی تو شدید ہوس اور گرمی، اور یہاں پہ خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر موجود ہے، جس میں جو ہے کافی بچے بھی ہیں اور خواتین بھی جو ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے یہاں پہ ان کا یہی کہنا ہے کہ نہ جو چینی دستیاب ہے اور جو آٹا ہے اس کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے۔ ہم صبح سے یہاں پہ جو آتی یوٹیلیٹی سٹور کے باہر بیٹھی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ آٹا نہیں آیا۔ اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، کب سے ادھر آئی ہیں، کچھ ملا ہے؟ آٹا کس ٹائم آتا ہے اور کس ٹائم نہیں؟ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਦਾਦ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਡੱਬੀ ਆਟਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ 700 ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਠੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਟੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ بیٹھے ہیں، گرمی کے مر گئے ہیں، ساری کوئی تو سن لو فریاد۔ آپ بتائیے گا، صبح سے آئی ہیں، کچھ ملا ہے؟ چینی تو کافی دیر سے ہی نہیں دستیاب، اب آٹے کا کوئی مقرر؟ مہینے دے وچ 2 واری آٹا دندے ہیں، ایک تھیلی 10 کلو کی تھیلی نال اسی کی کرانگے؟ جتھے 10 جنے کھان والے 10 کلو کی تھیلی کی کردی؟ اگے جدا ٹرک آਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਆਉਣ، ਆਟਾ ਉਦਾਂ ਦੇਣ, ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਣ ਜਾਣੇ۔ اور بھی یہاں پہ خواتین موجود ہیں، آپ بتائیے گا، بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، کس خواری کا سامنا ہے کہ صبح گرمی بھی بہت زیادہ تھی؟ کیا 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਟਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। یہاں پہ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بچوں کے ساتھ گئی ہیں، چھوٹے بچے بھی موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا، ساتھ جو ہے وہ گھر بھی چلانا اور ساتھ جو ہے صبح کی ادھر بھی آئی ہیں، کافی مشکل ہوتا ہوگا، بچے بھی ساتھ لے کے آئی ہیں اتنی گرمی میں، کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آٹے کی بہت قلت ہے۔ مہربانی آپ کی، اگر آپ کو سیٹیں چاہیے تو مہربانی بچوں کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں، آٹا یہاں پر دستیاب کریں۔ نہ تو چینی مل رہی ہے، نہ ہی ہمیں آٹا مل رہا ہے، اور ہمیں 3 دن ہو گیا، ہم روزانہ یہاں پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل، ایک جانب جو ہے وہ آٹے کا جو وقت ہے وہ نہیں مقرر کیا گیا حکومت کی جانب سے، تو دوسری جانب اگر آٹا ہے تو ان کا یہ جو یہاں پہ خواتین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 100 سے جو ہے وہ 150 بوری آتی ہے، لیکن جو یہاں پہ لینے والے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو خواتین کا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے جیسے پہلے حکومت کی جانب سے اپڈیٹ کرنے کے لیے تعمیراتی شعبے کو ایک اور دھچکا، سریے کی قیمت میں فی ٹن 15,000 روپے کا اضافہ، سریا کی قیمت 2,60,000 روپے فی ٹن ہو گئی، جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں تعمیراتی شعبے کو ایک اور دھچکا، سریا کی قیمت میں فی ٹن 15,000 روپے کا اضافہ۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے شراز پرت سے۔ جی شراز، بتائیے گا۔ سریے کی قیمتوں میں اس وقت 15,000 روپے فی ٹن کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ آج تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ اور اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یعنی جسے پیداواری لاگت کہتے ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سریے کا ریٹ جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکا ہے، اور 15,000 روپے اضافے کے بعد سریے کا ریٹ جو ہے 2,60,000 روپے فی ٹن ہو چکا ہے، جو کہ تاریخ کے تمام ماضی کے ریکارڈز توڑ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ ٹھیکیدار موجود ہیں جو کہ مکان تعمیر کروا رہے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سریے کا ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے مزدوروں کا روزگار بھی کس حد تک متاثر ہوتا ہے۔ سریے کا ریٹ بڑھ جانے سے کام بہت زیادہ بند ہونے کے مقام ہیں، بہت زیادہ بند ہو بھی گئے ہیں، تو اس سے مزدوروں کی اور لیبر کی یعنی کہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ 1 سال میں سریے کی قیمت تقریباً 1 لاکھ تک بڑھی ہے۔ مزدوروں کی دیہڑی نہیں بڑھ رہی، مزدوروں کی دیہڑی تقریباً 5-7 سال سے اتنی ہے
जितनी अब है, लेकिन महंगाई डबल हो गई है। सरिये का रेट 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन दिहाड़ी उतनी है जितनी आज 5 साल पहले थी। ठीक है, 5 साल पहले जितनी दिहाड़ी थी, यानी कि वही 1200-1500 जो दिहाड़ी थी वही चल रही है, और महंगाई जो है आसमान की बुलंदियों को छू रही है। तो इस वक्त जो घर तामीर हो रहे थे, जिस सोसाइटी के अंदर हमने औसतन अगर देखा जाए जहां 20 से 30 घर तैयार हो रहे थे, आज वो औसत जो है वो 4 से 5 घरों की रह चुकी है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल, जिसे तामीराती मटीरियल कहा जाता है, उसकी कीमतों में इजाफे की वजह से कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी, फैसलाबाद में 30 करोड़ रुपए का बोगस रिफंड्स केस पकड़ा गया। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए रिफंड्स हासिल करने की कोशिश। अकबर ब्रदर्स नामी कंपनी ने रिफंड्स क्लेम किया। फ्रॉडिया गैंग पकड़ा गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में 30 करोड़ रुपए का बोगस फंड्स केस पकड़ा गया। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए रिफंड्स हासिल करने की कोशिश। अकबर ब्रदर्स नामी कंपनी ने रिफंड्स क्लेम किया। बात करते हैं इसी हवाले से उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में रजिस्टर्ड अकबर ब्रदर्स नामी कंपनी की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ताहम एफटीआर की जानिब से अकबर ब्रदर्स की जानिब से क्लेम करते रिफंड की तहकीकात की गई, तो इसमें यह बात सामने आई कि इस कंपनी की जानिब से हकीकी तौर पर कोई कारोबार नहीं किया गया, मगर गैर कानूनी तरीके से बोगस रिकॉर्ड तैयार किया गया और बोगस की अरबों रुपए की खरीदारी दायर की गई, जिस पर इस कंपनी की जानिब से 30 करोड़ 52 लाख रुपए से जायद के रिफंड क्लेम किए गए। ताहम तहकीकात में ये टैक्स चोरी पकड़ी गई और इसके साथ साथ 2 मजीद कंपनियां, जिसमें बंगश इंटरप्राइजेज और एक रावलपिंडी के रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, इन दोनों कंपनियों को साथ मिलाकर जाली या बोगस रिफंड हासिल करने की कोशिश की गई। ताहम एफटीआर हुक्काम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर कपड़े के ताजिर भी परेशान हैं। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख मोहम्मद फैसल कहते हैं, कारोबार तबाह हो चुके, हुकूमत बिजली और गैस की कीमत में कमी करे। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल गैस के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से भी कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ताजर कहते हैं कि पहले ही महंगाई की वजह से कपड़े का कारोबार जो है वो तबाह होकर रह गया है और ग्राहक जो हैं वो मार्केट का रुख नहीं करते, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद आम आदमी की जो है वो मुतासर हो चुकी है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद फैसल, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब, क्या कहेंगे, गैस बिजली महंगी होती जा रही है, क्या मुतालबात हैं कारोबारी तबके के? देखिए जी, मुतालबात यही है कि इसको कंट्रोल करें। जितनी देर तक कंट्रोल नहीं करेंगे कोई चीज़ नहीं चलेगी। अब खा वो कारोबार है, खा वो एक आम आदमी के घर का चूल्हा ही है। अब आप देखें कि डॉलर कहाँ पर था, फिर नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके आए, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, गैस के रेट बढ़ाते हैं, अच्छा उधर बिजली के रेट बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के रेट कम कर देते हैं। किसी चीज़ का कोई भी ऐसा दायरा कार इन्होंने नहीं बनाया, कोई भी ऐसा मामला नहीं किया जिससे ये पता चले कि आम आदमी को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। जितनी देर तक ये मामलात रहेंगे, देखें हम लोग इस वक्त उस पिस चुके हैं गुर्बत में कि सिर्फ़ और सिर्फ अमीर आदमी को इसका फ़ायदा हो रहा है। हम कहते हैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि इसको रेट कम करें। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जाता है। जी बहुत शुक्रिया फजील अहमद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं फैसलाबाद में बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। सेंट्रल चेयरमैन कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं, कारोबार करें या बिल दें। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल टोकर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगी होती बिजली फैसलाबाद की मार्केट्स के ऊपर भी असरअंदाज हो रही हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यॉन मार्केट महंगी बिजली की वजह से मुतासिर नज़र आ रही है। स्पिनिंग और विविंग जो कि ख़ास तौर पे इससे लिंक है, उसके ऊपर ज़ायद जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है उसके असरात मंडी के ऊपर मुरतब होते देखे जा रहे हैं। यॉन मार्केट के सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं कैसर शम्स गुच्छा। गुच्छा साहब, कैसे देख रहे हैं, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और आपके ख्याल में ये महंगी बिजली कितना अफेक्ट कर रही है मार्केट में? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात बहुत ही बुरे हैं। हर दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी बिजली महंगी है, हमारी गैस महंगी है, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, उसके अलावा जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इस हालात में हमारी इंडस्ट्री पहले ही जो है दिन ब दिन बंद हो रही है। उसके बाद जो इन्होंने 7 रुपये यूनिट जो बिजली अब इन्होंने बिजली का रेट बढ़ाया है, उसके बाद तो मुझे लगता है बिल्कुल ही हमारी इंडस्ट्री जो है वो चलने के काबिल नहीं है।
अभी मुहर्रम के बाद देखें, मुझे लग रहा है कि हमारी तकरीबन सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। पहले ऑलरेडी हमारी तकरीबन हमारी 75% हमारी पावर लूम बंद हो चुकी है, हमारी डाइंग प्रिंटिंग हमारी काफ़ी बंद हो चुकी है। इसके अलावा हमारी स्पिनिंग हमारी जो है वो तकरीबन ईद से पहले की 50% बंद हो गई है। बाकी जो इन्होंने थोड़ा सा जो गैस में को रिलीफ दिया है वो तो मेरे ख्याल में को आटे में नमक के बराबर है, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो हंगामी बुनियादों पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए इनको इक़दाम करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर इसमें बिजली का है। उसके बाद जो बाकी मामलात हैं, इस वक्त आपको पता है सियासी सूरत सियासी में सबसे मामला बड़ा ये है, जब तक सियासी सूरत ठीक नहीं होगी हमारा मुल्क जो है, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारे मामलात कारोबार है, ये सही नहीं चल सकते। सही नहीं चल सकते और ख़ासतौर पर इनका कहना है कि आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में यौम आशूर के हवाले से महकमा सेहत की तैयारियां मुकम्मल। मेडिकल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में अद्वियात की फराहमी मुकम्मल कर दी गई है। मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइए। अशूरा के हवाले से महकमा सेहत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जलूस और मजालिस पर जो है वो टीमें की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जबकि अगर बात की जाए मराकिज़ सेहत की तो वहाँ पर भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स की स्पेशल ड्यूटियाँ थीं वो लगा दी गई हैं और इसी के साथ जो एक्स्ट्रा बेड थे वो भी लगा दिए गए हैं। मेरे साथ MS डॉक्टर शहबाब वाला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या क्या इंतजामात किए गए हैं यौम आशूरा के हवाले से? जी बिल्कुल, डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सारे लीव्स, कैजुअल लीव्स और अर्न लीव्स कैंसिल कर दिए हैं। स्पेशल डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगा दी हैं, एम्बुलेंसेस रेडी हैं हमारे, और स्पेशल बेड और सारी एमरजेंसी अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं और अल्लाह खैर रखे, वी आर रेडी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र जो है वो एमरजेंसी ड्यूटियां लगाई गई हैं डॉक्टर्स की, और इसी के साथ मेडिकल एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की तमाम तर अद्वियात। फैसलाबाद में कचहरियों से कोर्ट फीस टिकट गायब, वकला और साइलिन को अपीलें। नकल के हुसूल समेत दीगर अदालती मामलात में दुश्वारी का सामना है। तफसीलात जानते हैं हाशिर बड़ाइच से। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा। फीस टिकट का जो मसला है वो इस हवाले से अभी तक हल नहीं हो सका, जिसके बाद साइलिन और जो वकला हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अगर हम तफसीलात से अगर बात करें तो कोर्ट फीस टिकट जो है वो किसी भी अदालत के अंदर दी जाने वाली एप्लीकेशन या पटिशन जो है उसके साथ लगाना जो है वो लाजमी है, लेकिन इस वक्त अदालतों के अंदर और कचहरियों के अंदर जो है वो कोर्ट फीस टिकट जो है मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुका है, जिसके बाद साइलिन और वकला जो है उनको बाज़ दफ़ा जो है वो अपनी पटिशन या अपनी दरखास्त जो है वो अदालत के अंदर जमा करवाने के लिए इस हवाले से जो है वो ब्लैक में टिकट जो है वो ख़रीदना पड़ रहा है। जबकि अगर ब्लैक में वो टिकट जिसकी जो कीमत है वो 2 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये है, वो ब्लैक के अंदर जो है वो 100 से ज़्यादा रुपये तक भी जो है वो मिल रहा है। लेकिन मजबूरी के बाद जो साइलिन और वकला जो है वो इस वक्त खरीदने पर मजबूर है, जिसके बाद वकला का ये कहना है कि मुतल्लिका जो हुकाम है उनको चाहिए कि इस हवाले से एक्शन लें और कचहरियों के अंदर जो कोर्ट फीस टिकट का मसला है उसको हल किया जाए, ताकि साइलिन। बहुत शुक्रिया आशिफ बड़ाइच अपडेट करने के लिए। आगे बढ़कर आपको बताएं, फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा माह मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन इजाफे के साथ मिलेगी। आपको बता रहे हैं फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। फेस्को ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइंदा माह मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन इजाफे के साथ मिलेगी। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को मुलाजमीन की अच्छी खबर है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत के अहकाम के बाद वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की जो मंजूरी है वो दी गई। इसका बाकायदा तौर पर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की वो मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को को भी जो खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। नॉन फॉर्मल लिटरेसी प्रोग्राम कौमी इदारा बराए इंसानी तरक्की प्रोग्राम के लिए 19 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नॉन फॉर्मल लिटरेसी प्रोग्राम और कौमी इंसानी तरक्की प्रोग्राम के लिए फैसलाबाद डिवीज़न के में सूबा भर के 36 ज़िला के लिए 19 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में नॉन लिटरेसी प्रोग्राम और अदारा कौमी इंसानी तरक्की प्रोग्राम के लिए 33 लाख के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह जंग के लिए जो है वो 1 करोड़ 19 लाख और इसी तरह जो है वो टोबा टैक्सिंग के लिए 19 लाख 30 हज़ार और चन्योट के लिए जो है वो 18 लाख 68 हज़ार के फंड जारी किए गए हैं। इन तमाम फंड से जो है वो
قیدیوں کی فنی تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی نان لٹریسی پروگرام ہیں اور جو الٹریٹ خواتین ہیں ان کی خواندگی کو بڑھانے کے لیے یہ فنڈ جاری کیے گئے ہیں، اور فیصل آباد میں صوبہ بھر کے لیے 19 کروڑ کے فنڈ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ جی فیصل آباد میں الائڈ اسپتال کے شعبہ اندرونی اور بیرونی مریضہ کی تزئین و آرائش کا فیصلہ، نگران حکومت نے 26 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ تفصیلات جانیں گے عزیزدار حسین سے۔ جی عزیزدار، بتائیے گا کب سے تزئین و آرائش پر کام شروع ہوگا؟ جی بالکل، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے الائڈ اسپتال کی ریویمپنگ کے حوالے سے جو تھا اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور الائڈ اسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی مریضہ میں تقریباً 26 کروڑ روپے کی جو ہے وہ لاگت آئے گی، کیونکہ الائڈ ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے رابطہ کیا گیا تھا کہ الائڈ اسپتال کی جو عمارتیں ہیں وہ اب خستہ حالی کی طرف جا رہی ہیں، تو اس لیے اس کی جو ہے وہ ریویمپنگ کی جائے، یعنی کہ تزئین و آرائش کی جائے، اور اس سلسلے میں شعبہ بیرونی مریضہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شعبہ اندرونی مریضہ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ تزئین و آرائش کی جائے گی، اور اس منصوبے کے اوپر تقریباً 26 کروڑ روپے کے جو فنڈز ہیں وہ نگران حکومت کی جانب سے جاری کرنے کے حوالے سے احکامات دے دیے گئے ہیں، اور کیونکہ شعبہ بیرونی مریضہ کا اگر بات کی جائے تو یہاں پہ تقریباً 5 سے 6 ہزار مریض روزانہ کی بنیاد پہ علاج معالجے کے لیے رجوع کر رہے ہیں، اور اسی طرح شعبہ اندرونی مریضہ میں تقریباً ہزاروں مریض ہیں وہ زیر علاج رہتے ہیں، ان کے ساتھ تیماردار موجود ہیں اور میڈیکل کا عملہ موجود ہے، اور اسی سلسلے میں جو تھا عزیزدار حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔